মেক ইন ইন্ডিয়ার আওতায় 114টি রাফাল জেটের জন্য বিমান বাহিনী 2 লক্ষ কোটি টাকার চুক্তির প্রস্তাব করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। ফ্রান্সের ডাসল্ট থেকে 60%-এর বেশি দেশীয় উপকরণ সহ 114টি ভারতের তৈরি রাফাল জেট কেনার প্রস্তাব করেছে, যার মূল্য 2 লক্ষ কোটি টাকা। ভারতীয় বায়ুসেনা ভারতীয় মহাকাশ সংস্থাগুলির সহযোগিতায় ফরাসি সংস্থা ডাসল্ট এভিয়েশন দ্বারা নির্মিত 114টি ভারতের তৈরি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে। 2 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের এই চুক্তিতে 60%-এরও বেশি দেশীয় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে প্রস্তাবটি শীঘ্রই প্রতিরক্ষা সচিবের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা ক্রয় বোর্ডের সামনে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, ভারতীয় বিমান বাহিনীর স্টেটমেন্ট অফ কেস বা 114টি রাফাল জেটের প্রস্তাব কয়েকদিন আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেয়েছে এবং প্রতিরক্ষা অর্থ সহ এর অধীনে বিভিন্ন শাখার বিবেচনাধীন রয়েছে। আলোচনার পর প্রস্তাবটি প্রতিরক্ষা ক্রয় বোর্ড বা ডিপিবিতে পাঠানো হবে। এরপর প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিলে পাঠানো হবে। যদি এই চুক্তি প্রস্তাব অনুমোদন পায় তাহলে রাফালের জন্য এটি হবে এ যাবৎকালের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা চুক্তি, যার ফলে ভারতের নৌবহরে সংখ্যা 176-এ উন্নীত হবে। ভারতীয় বিমান বাহিনী ইতিমধ্যেই 36টি রাফাল অন্তর্ভুক্ত করেছে, আর ভারতীয় নৌবাহিনী সরকার থেকে সরকার চুক্তির অধীনে আরও 36টি রাফালের অর্ডার দিয়েছে। অপারেশন সিন্দুরের সময় রাফালের শক্তিশালী পারফরমেন্স প্রদর্শনের পরপরই এই প্রস্তাব আসে, যেখানে তারা স্পেকট্রা ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার স্যুট ব্যবহার করে চীনা PL-15 এয়ার টু এয়ার মিসাইলকে ছাড়িয়ে যায়। ভারতে নির্মিত আসন্ন রাফাল বর্তমানে স্ক্যালপের চেয়ে দীর্ঘ পাল্লার এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইল বহন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা পাকিস্তানের সামরিক ও সন্ত্রাসবাদী লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। ডাসল্ট এভিয়েশন হায়দ্রাবাদে রাফালের M88 ইঞ্জিনের জন্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং ওভারহল সুবিধা স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। ফরাসি সংস্থাটি ইতিমধ্যে ফরাসি উৎপাদিত যুদ্ধ বিমানের পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি ইউনিট স্থাপন করেছে এবং টাটার মতো ভারতীয় সংস্থাগুলি এই উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর জরুরি ভিত্তিতে নতুন যুদ্ধ বিমানের প্রয়োজন। এর ভবিষ্যৎ নৌবহরটি Su-30 MKI রাফাল এবং দেশীয় বিমান প্রকল্পের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আম্বালার এয়ারফোর্স স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন আমাদের প্রতিনিধি শিবানী শর্মা। এই এয়ারফোর্স স্টেশনে রয়েছে বেশ কয়েকটি রাফাল জেট। দেখব। भारतीय वायुसेना का रफाल 4.5 जनरेशन का सर्वोत्तम फाइटर जेट है, जिसे भारत ने फ्रांस से लिया। 2016 में 36 रफाल फाइटर्स के लिए डील साइन हुई और 2020 से इनका भारत में आना शुरू हुआ और अब अंबाला और हाशिमारा में रफाल के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। अलग अलग ऑपरेशनल रोल्स में ये लगातार अपनी खूबियां दिखा रहे हैं और अपनी कैपेबिलिटीज से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ठिकानों को नेस नाबूद किया। अगर रफाल की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 1.8 माक है और इसके हथियार जो इसे सबसे खास बनाते हैं, चाहे वो हैमर मिसाइल्स हो, स्कैल्प मिसाइल्स हो, मिटियोर्स हो या दूसरे मिसाइल सिस्टम्स जिन्हें इनके साथ इंटीग्रेट किया गया, और पाकिस्तान के अंदर इन्हीं स्कैल्प और हैमर्स ने तबाही मचाई और 300 किलोमीटर तक की रेंज से इन्होंने अंदर हमला किया और पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने, जो आतंकवादी ठिकाने थे और जो सैन्य हवाई अड्डे थे, उनका हश्र आप सभी ने देखा। तो रफाल की ताकत और रफाल की खूबियां बेमिसाल हैं और ऑपरेशन सिंदूर में एक बार फिर रफाल ने साबित किया कि ये भारतीय वायुसेना के नायक हैं। আম্বালা এয়ারফোর্সের গোল্ডেন অ্যারো স্কোয়াড্রনের গ্রুপ ক্যাপ্টেন অমিত ঘিয়ানি জানালেন রাফাল ফাইটার জেট সম্পর্কে। তার মতে অপারেশন সিন্দুরের সময় যা যা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল সবকিছুই রাফাল নিখুঁতভাবে পালন করেছিল। যেখানে যেখানে মিসাইল হামলার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল সেখানে নিখুঁতভাবে হামলা চালানো হয়েছিল। অমিত ঘিয়ানি গ্রুপ ক্যাপ্টেন ভারতীয় বায়ুসেনার কি বলছেন শুনবো। जानते हैं एक बहुत ही एडवांस्ड वेपन प्लेटफॉर्म है, एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरीके के रोल कोई भी फाइटर जेट निभाता है वो सारे रोल निभाने में रफाल एकदम सक्षम है।
एंड ऑपरेशन सिंदूर में नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जितने रोल इस जहाज को और इस स्क्वाड्रन को असाइन किए गए थे वो सारे इसने बखूबी निभाए हैं। जी फिलहाल मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि जो रोल हमें असाइन किए गए थे वो हमने बखूबी निभाए हैं। जहां जहां वेपन जाने चाहिए थे वहां पे बिल्कुल प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ वो वेपन वहां गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर स्क्वाड्रन को अगर आप देखें तो सबका मोटा मोटा एक ही तरीके का रोल होता है कि जब नेशन की रिक्वायरमेंट हो वो पंच, ऑफेंसिव पंच वो फाइटर स्क्वाड्रन उनको दे। उसी तरीके से मेरा रोल एज अ कमांडिंग ऑफिसर यही है कि जब देश को जरूरत पड़े तो मेरा स्क्वाड्रन, मेरा जहाज, मेरा एयरक्रू का मोराल हाई होना चाहिए और वो बिल्कुल रेडी होने चाहिए। इसमें हमें कोई शंका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रफाल कितना केपेबल एयरक्राफ्ट है। J-10, J-35 किसी भी ऑपोजिशन के लड़ाकू विमान से निपटने के लिए ये जहाज बिल्कुल पूरे तरीके से सक्षम है। আম্বালা স্কোয়াড্রনের তরুণ ফাইটার জেট পাইলটরা বিশদে জানালেন রাফালের বিশেষত্ব। দেখব। आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट राघव अरोड़ा। सर, आपसे जानना चाहेंगे ओमनी रोल क्यों कहा जाता है रफाल? ओमनी रोल शब्द का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो मिशंस हैं वो ये एयरक्राफ्ट एक ही सॉटी में सबको अंजाम दे सकता है। जैसे ग्राउंड अटैक करते समय किसी एयर टू एयर थ्रेट को काउंटर कर सकता है, या एक लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करते समय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है। सब कुछ एक ही सॉटी के दौरान कर सकता है, इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को ओमनी रोल कहा गया है। यानी एक साथ बहुत सारे मिशंस को ये लेके जा सकता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिश सिंह सिसोदिया मेरे साथ हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हम एवियोनिक्स की बात करते हैं, रेडार सिस्टम्स की बात करते हैं, इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उस पर मैम, इस जहाज का जो मैन मशीन इंटरफेस है वही इस जहाज को बाकी लड़ाकू विमान से अलग और बेहतर बनाता है। इस जहाज का मैन मशीन इंटरफेस ना केवल यूजर फ्रेंडली है बल्कि एक कॉम्बैट डेंस एनवायरनमेंट में पायलट की परफॉर्मेंस को भी काफी बेहतर बनाता है। इस जहाज में जो रडार लगा हुआ है वो कैपेबल है बोथ एयर एज वेल एज सरफेस थ्रेट्स को ट्रैक करने में, वो भी बहुत प्रिसाइजली। इस जहाज का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो है वो इस जहाज की सर्वाइवेबिलिटी को भी बढ़ाता है और इसके साथ साथ इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को भी काफी बढ़ावा देता है। इस जहाज में जो सेंसर फ्यूजिंग टेक्निक का एवियोनिक्स में यूज किया गया है उसकी वजह से पायलट की डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स में भी काफी मदद मिली है। इस जहाज में जो वेपन्स इंटीग्रेट करे गए हैं वो कैपेबल हैं बोथ एयर टू एयर लॉन्च और एयर टू सरफेस डिलीवरी के, जिसकी वजह से ये जहाज काफी लीथल, खतरनाक और इसके साथ साथ एक स्विंग रोल वेपन डिलीवरी के काबिल भी है। ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रज्वल शेट्टी, आपसे मैं जानना चाहूंगी जब ट्रेनिंग और सिमुलेटर्स की बात होती है तो इसको कैसे समझा जाए, कितना जरूरी है ये? हमें जैसे पता है रफाल एक काफ़ी आधुनिक एयरक्राफ्ट है जो मॉडर्न वेपन सिस्टम्स और एवियोनिक सिस्टम के साथ आता है। इसीलिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेसेस इनिशियली द पायलट हैज़ टू गो थ्रू अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और रिगरस भी है, एंड राइटली सो बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लॉइट द एयरक्राफ्ट टू इट्स मैक्सिमम। इसी में काम आता है हमारा सिमुलेटर। हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर है जो एक हाई फिडिलिटी फुल मिशन डोम सिमुलेटर है। इसमें जो हर बटन है, हर कंट्रोल है और हर डिस्प्ले है और काफ़ी हद तक इसका कॉकपिट प्लेटफॉर्म लेआउट और जो हमें हवा में महसूस होता है जैसे कि आवाज़, सब कुछ इसमें काफ़ी रियलिस्टिकली सिमुलेट हो पाता है। इसीलिए ना बल्कि बस ट्रेनिंग फेस फिर और जब हम ऑपरेशनल भी हो जाते हैं हमारे मन में जो भी सवाल उठता है हम चलते हैं सिमुलेटर की ओर। उसमें हमारे मन में जैसे कोई भी सवाल उठता है जैसे कि कोई भी क्रिटिकल इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है या फिर मुझे कोई मिशन की तैयारी करना है जिसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज है, मैं सब कुछ इसमें सिमुलेट कर सकता हूँ। इसीलिए it has been very helpful and will pay rich dividends in the coming future as well. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।